Assalamu alaikum viewers. Today, News Diaries team is presenting you an inspiring video on charity, charitable institutions and interviews of people doing charity work in Pakistan. To know their motivation behind this work. The practice of charity basically is the voluntary giving of help to those in need as a humanitarian act. Let's know about Pakistan and the charity work happening here. According to Stanford Social Innovation Review 2018, Pakistan is one of the generous countries. Pakistan contributes more than 1% of its GDP to charity. The wealthier countries like UK spends 1 to 3% of GDP to charity, while Canada 1 to 2%. So Pakistan is almost at par with these wealthier countries when it comes to charity. As per one of the study conducted by Pakistan Center for Philanthropy, Pakistanis give around more than $2 billion annually to charity. The same report indicates that about 98% of people in the country give in one form or another. If not with cash, then with in kind donations or by volunteering for needy causes. Listeners, one of the top philanthropists of Pakistan is Abdul Sattar Eidi. He built Eidi Foundation, which runs world's largest volunteer-based charitable organization. Imran Khan, a cricketer, a politician, currently the Prime Minister of Pakistan, is also famous for his social and charitable work. Imran Khan built Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Namal Knowledge City as charitable institutions helping the needy and poor. Listeners, now listen to our other social workers and humanitarians who are working in different capacities to help the deprived segments of our society. Assalamu alaikum friends. Let me show you around our charity school today. We started this school 10 years back and our main aim was to provide free good quality education to underprivileged children. The charity is registered in the UK but we have schools in Lahore and Mansehra. We have a very dedicated staff who looks after the kids' teaching. Alongside supporting their academia, they take them on fun yet educational trips. The kids love these trips and this provides them a good quality time outside the school premises with their friends. It is very fulfilling to see their children's enthusiasm and the positive impact it makes in their lives. The kids are intelligent and with proper resources and guidance, inshallah, they will prosper. The kids are given certificates, medals, trophies, and prizes over their academic achievements at the end of the school year to keep them motivated. Please check our Facebook page and website to find out more about the charity and how you can support and help the cause. www.mashaltrust.org. Thank you. Listeners, it's really heartening to see kids learning and enjoying in healthy environment due to your charity. Let's go and listen to Miss Aisha Iqbal, what she has to say about charity. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा इकबाल है और मैं पंजाब असेंबली की मेंबर हूँ। जैसा कि सबको पता है कि ये वर्ल्ड चैरिटी डे है, इस पर मैं सबको पैगाम दूंगी कि नो डाउट कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी में बहुत ज़्यादा दुनिया में आगे है और लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैरिटी तालीम पे लगाएं। अभी हमारे 2 करोड़ बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। अगर हम सारे अपनी चैरिटी से एक एक बच्चे को पढ़ा दें तो हमें ना नए स्कूल खोलने की ज़रूरत है और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को अपने बच्चों जैसे अगर तालीम देंगे तो हमारे बच्चे भी बहुत लायक निकलेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि चैरिटी जो है बजाय हम ये हमारे मुल्क में बेगरी इसीलिए प्रमोट होती है कि हम लोग बैगर्स को हर जो इशारा है उसके ऊपर हाथ निकालते हैं गाड़ी में से और 10-20-100 रुपया पकड़ा देते हैं और यही वजह है कि बेकरी बहुत एक बिज़नेस बन गई है, लोग काम नहीं करते। तो एक मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़
अगर आप 1 महीना बेगर्स को पैसे नहीं देंगे ना तो वो ज़रूर काम करेंगे। और सेकेंडली आप अपनी जो ज़कात है, जो चैरिटी है, इससे बच्चों की तालीम पे लगाएं। अगर आप एक बच्चे को पढ़ा देंगे वो पूरे ख़ानदान को लेके चलेगा। और तालीम होगी तो शऊर आएगा, शऊर होगा तो तब्दीली आएगी। शुक्रिया। No doubt, educated societies help to transform their whole generation. We all need to play our part. The next interview is of Miss Farzana Naeem, who is also contributing in educating young minds. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना नईम है। 3 साल पहले की बात है कि मेरी मुलाकात एक फंक्शन में ज़ुमरुद ख़ान साहब से हुई। वो पाकिस्तान स्वीट होम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से जो है रन कर रहे थे, जिसमें कि तमाम यतीम बच्चे जो थे वहाँ पे हैं, और वो उनकी 4 साल से लेके टिल जॉब्स तक की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। उसके कोई 1 साल बाद अचानक ख़ान साहब ने मुझे कॉल की और कहा कि इस टाइम वो लाहौर में एक कैंपस बनाना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करूं। उस वक्त मैंने ये सोचा कि अब तक मैंने दुनियादारी के लिए जो कुछ भी किया था वो इनफ है, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, और मुझे सिर्फ वो मैं लेके जाऊँगी जो मैं आगे भेजूँगी। और आगे भेजना ये मेरे अमाल हैं जिनको मैं आगे भेजूँगी, तो मे बी कि उस वक्त मेरे लिए वही फ़ायदा दे जाए। तो उस सोच को जहन में रखते हुए कि अगले सफ़र के लिए कुछ ज़्यादा सफ़र साथ होना चाहिए, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया एज ए जनरल मैनेजर। चैरिटी का काम बहुत मुश्किल भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि किसी को इस चीज़ पे राज़ी कर लेना कि हम उसे जो बात कह रहे हैं वो जो है वो 100% सही है, और जहाँ पे हम कह रहे हैं वहीं पे वो अमाउंट जाके ख़र्च भी होगी। तो इसमें बहुत शुरू में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मैं एज एजुकेशनिस्ट तो एजुकेशन पे तो कुछ भी काम कर सकती हूँ, मेरी फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। लेकिन ज़ुमरुद ख़ान साहब मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने मुझे इस रास्ते में बहुत ज़्यादा गाइड किया, जिसकी बेस पे मैंने अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर सकी कि जाऊं और जाकर मैं लोगों के साथ इस बात को शेयर कर सकूं कि मैं उनसे अगर कोई चीज़ लेना चाह रही हूँ तो वो कहाँ पे जाके जो है ना यूज़ होगी। पाकिस्तान में मुझे इस चीज़ पे बड़ी खुशी होती है, चाहे कोई मुझे दे या ना दे डोनेशन, लेकिन जब मैं उनकी सारी बात सुनती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि हर बंदा अपने घर में, अपने अराउंड में ज़रूर ऐसे लोगों को हेल्प कर रहा है जो कि नीडी हैं, और वो आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ जो वाकई जो है इस काम को हकीकी तौर पे सरअंजाम दे रही है। और रिसेंटली हमने एक दुनिया का पहला ये प्रोजेक्ट है जो सिर्फ ऑर्फन्स के लिए कैडेट कॉलेज बनाया गया है, और इसमें भी 100% फ्री जो है आपकी बोर्डिंग भी, एजुकेशन, ऑल थिंग्स है टिल जॉब्स तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एक सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन देती। चाहे तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि चाहे देखें अमाउंट जो है ना वो काउंट नहीं होती है, अल्लाह के यहाँ नियत काउंट होती है, और ये होता है कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। इसलिए अगर आप कहीं पे भी चैरिटी करते हैं तो ये सोच के कीजिएगा कि ये बैंक अकाउंट जो है अल्लाह के घर में है और अल्लाह के नाम पे खोला गया है, और वो कभी आपको नुकसान नहीं दे सकता। जो अल्लाह के घर की चीज़ है वो आपको कभी नुकसान नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया। We all can do charity both at individual and collective level. Let's listen to Ms. Sara Naseem that how she derives her motivation to do charity work. चैरिटी जो है बेसिकली अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है वो हमारा नहीं है, वो उसका दिया हुआ है, और उसी में से ही हमने जो ज़रूरतमंद अफराद होते हैं उनको देना होता है। और इसका सिला सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में तो है ही है, इस दुनिया में भी आपको मिलता है। और इस ज़िम्न में आप देखें कि अहादीस भी हमें मिलती हैं, कुरान में भी इसका तज़किरा है, और एक वाक़या हमें मिलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि एक फलां शख्स जो है वसीयत कर गया है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो उसके पास एक खजूरों का गोदाम था पूरा, और उसने कहा कि मेरे ये तमाम खजूरें मेरे जाने के बाद, मरने के बाद
सदका खैरात कर देना, तो लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। और जब ऐसा हुआ और वो दुनिया से चला गया और जब लोगों ने वो तमाम खजूरें बांट दी मदीने में, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए गोदाम में और एक खजूर पड़ी थी जो कि ठीक भी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाई और फरमाया कि अगर ये खजूर वो शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से सदका कर जाता तो इस पूरे गोदाम से बेहतर था, जिसका मफहूम ये बनता है बुनियादी तौर पे, कभी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बात करने की ये है कि जब हम ज़िंदा हैं और हमारे पास जो माल है, तो बेहतर यही है कि हम इसको अल्लाह की राह में ख़र्च करें, खुले दिल के साथ खर्च करें। आखिरत में तो इसका सवाब मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन दुनिया में भी आप देखेंगे कि आपके मामलात किस तरह से सीधे होते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना शुरू कर देता है। Listeners, these all interviews were very inspirational and motivational for all of us. Before you go, do like this video, share your thoughts in the comment box. Also share this video. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon for further notification. Stay tuned till the next video. Thank you.